Community College, Rewa, which is a NAAC accredited A grade college whose CGPA is 3.35. He has a vast and enriched experience of more than 27 years in teaching as well as research. He has an enriched experience as a resource person in academics, training, different seminars, conferences of national and international level. He has also participated as a resource person on NAAC preparation organized by institutions in Uttar Pradesh, Punjab, and Chhattisgarh. He has been a coordinator, director of IQAC and NAAC at his college, that is TRS College, Rewa. He has been also a coordinator, steering committee, NAAC, at Government TRS College, as well as a professor in charge of UGC RUSA World Bank projects. He is also member state level NAAC committee under Atmanirbhar Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. He is also member state level academic and administrative audit committee of Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. Dr. S.P. Shukla sir has also served as a master facilitator of NAAC and guided 7 colleges of Rewa division of SSR. I'll repeat his introduction again in a while. We are also waiting for other participants to join, so kindly bear with us in 5 to 10 minutes. There is some technical fault on part of a speaker, so kindly bear with us for next 5 to 6 minutes, then we'll start.
Our today's expert has finally joined. Now I'll introduce him. Dr. S.P. Shukla, sir, is a professor, political science from Government Thakur Ranmat Singh College, that is TRS College, Rewa, which is NAC accredited A-grade college, whose CGPA is 3.35. He has a vast and enriched experience of more than 27 years in teaching as well as research. He has an enriched experience as a resource person in academics, training, seminars, conferences of national and international level. He has participated as a resource person on NAC preparation organized by institutions in Uttar Pradesh, Punjab, and Chhattisgarh. He has been a coordinator, director, IQAC and NAC at TRS College, Rewa. He has been a coordinator, steering committee of NAC at Government TRS College and has been a professor in charge of UGC RUSA World Bank projects. He is also a member state level NAC committee under Atmanirbhar Madhya Pradesh, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. He is also a member state level academic and administrative audit committee, Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. He has also served as a master facilitator of NAC and has guided 7 colleges of Rewa division in preparation of SSR. Now I cordially invite Dr. S.P. Shukla sir for his session, which is the first session of day 2 of this 5-day online workshop. Sir. Thank you, ma'am. सॉरी फॉर इंटरप्शन, काफी देर से मैं प्रयास कर रहा था जुड़ने को, कुछ इंटरनेट इशू था इसलिए मैं जुड़ नहीं पा रहा था। मेरी आवाज आ रही है मैडम? Yes sir, please go ahead. ओके मैम, ओके। Perfectly okay. परम आदरणीय पीसी डॉक्टर जयंत सोनवलकर साहब, डॉक्टर साधना मैडम, डॉक्टर सीता राजन मैडम, महेश्वर जी, सम्मानित नैक टीम के सभी सदस्य, IQ के सदस्य, परम सम्मानित स्रोत वक्ता और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए भागी, आप सभी को सादर अभिवादन। सबसे पहले मैं आयोजन समिति के लोगों को धन्यवाद और उनका आभार ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं और अपने विचार साझा कर सकूं। हम ये जानते हैं कि नैक एक कठिन प्रक्रिया है और खास तौर पे जब ओपन यूनिवर्सिटीज की बात होती है। ओपन यूनिवर्सिटीज बहुत वास्ट सिलेबस होता है और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम्स आपके पास होते हैं और दूर तक लोगों को पहुंचाना होता है। इसलिए थोड़ी सी कठिनाई या थोड़ी सी समस्या हम कह सकते हैं, जो ट्रेडिशनल या जो कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम से संबंधित यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, उनकी तुलना में थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है और अगर हम सब मिलके सही तरीके से प्रयास करते हैं तो हमारी ग्रेडिंग अच्छी होती है। नैक तैयार करने से पहले कुछ बातें, नैक की तैयारी करने से पहले कुछ बातें हम लोग आपस में समझ लें। हम जानते हैं कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छी तरह से इसकी जानकारी है और यहाँ ये मंच जो है तो विचार साझा करने का मंच है, एक दूसरे से इंटरेक्शन का मंच है। एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम एफिशिएंट इनफ टू हैव एन इंटरेक्शन विथ यू। फिर भी हम लोग अपने विचार साझा करते हैं। मैं सबसे पहले अपना पीपीटी मैडम शेयर कर लेना चाहता हूं। मैडम पीपीटी विजिबल है हमारा? यस सर, आपकी पीपीटी दिख रही है सर जी। ठीक है मैडम। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नैक की तैयारी एक कठिन प्रोसेस है और नैक does not only evaluate the institutions,
it evaluates each and every faculty member. It accredits the staff members, each and every initiative and each and every effort that we put in quality initiative and quality assurance activities. तो इस तरह से हम सबका मूल्यांकन होता है और इसीलिए हमारी तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए. वी हैव टू अर्न ईच एंड एवरी क्रेडिट. हर क्रेडिट को, हर एक वेटेज मार्क को हमें अर्न करना होता है और इसके लिए हमारी बहुत अच्छी तैयारी होती है और तैयारी होनी चाहिए. कुछ बातें हम लोग करना चाहेंगे. सबसे पहले तो ये जरूरी है, व्हाट HEIs आर एक्सपेक्टेड टू डू. उच्च शिक्षण संस्थाओं से क्या अपेक्षा की जाती है, खासतौर पे NAAC एक्रेडिटेशन के समय, या NAAC क्या एक्सपेक्ट करता है, और व्हाट द HEIs एक्चुअली हैव. उच्च शिक्षण संस्थाओं के पास वास्तव में क्या चीजें हैं और वे क्या कर सकते हैं. ये तीन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि NAAC हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है और हम हिसाब से अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं. हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हमारे पास क्या इनिशिएटिव्स हैं और हम और क्या जोड़ सकते हैं जिससे कि हम अपनी क्रेडिट को बेहतर बना सकें. तो ये तीनों बातों को फोकस करके हमें अपनी तैयारी को करना होता है. हम आगे चलते हैं. हमारा जो प्रिपरेशन होता है वो टारगेटेड होना चाहिए और स्मार्ट वर्क पे फोकस ज्यादा करना चाहिए. हार्ड वर्क तो खैर जरूरी है ही है, हार्ड वर्क को मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क हमको करना आवश्यक है. हमको ये समझना होगा कि हम कहाँ पे मजबूत हैं और कहाँ पे हमको मजबूत होने की आवश्यकता है. हमने अभी तक क्या तैयारी कर ली है और ऐसे कौन से लूपहोल्स हैं जिन पर हम फोकस करके अपनी क्रेडिट को बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं. तो इन चीजों पर फोकस करना है और इसीलिए इट इज बेटर टू फोकस ऑन स्मार्ट वर्क रादर देन ऑन हार्ड वर्क. हमें स्मार्ट वर्क पे फोकस करना चाहिए. कठिन परिश्रम तो जरूरी है, उस पर तो फोकस होना ही चाहिए. स्मार्टली अगर हम ईच एंड एवरी पार्ट को समझें, और इसीलिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमारी जो टीम IQAC की बनती है या NAAC की तैयारी करने वाली टीम बनती है या SSR प्रिपरेशन की जो कमेटी बनती है, उन सभी लोगों को एक्सटेंसिव रीडिंग करनी चाहिए और हर एक एस्पेक्ट को समझना चाहिए. कौन सा एस्पेक्ट क्या चाह रहा है और हम उसको उसकी प्रतिपूर्ति कैसे कर सकते हैं. तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है. NAAC हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? NAAC एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं उनके पास किस तरह के क्वालिटी इनिशिएटिव्स हैं, कौन सी पहल वो कर रहे हैं अपनी संस्था को क्वालिटेटिव बनाने का, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्वालिटेटिव बनाने का, कैरिकुलम को क्वालिटेटिव बनाने का. और इसीलिए ये एक्सपेक्ट किया जाता है वी मस्ट कीप ऑन इवेल्युएटिंग आवरसेल्फ थ्रू आउट द 5 years. 5 साल तक का हमारा इवेल्युएशन लगातार होते रहना चाहिए और हमें अपने इनिशिएटिव्स पर फोकस करते रहना चाहिए कि हम किस तरह की क्वालिटी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे हमारी संस्था को, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फायदा पहुंच रहा है. तो ये हमसे NAAC एक्सपेक्ट करता है. तो सेल्फ इवेल्युएशन इज द प्राइमरी थिंग या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वी कैन से. दूसरी बात है क्वालिटी सस्टेनेंस. हाउ कैन वी रिटेन द क्वालिटी इनिशिएटिव. जो हमने क्वालिटी को स्थापित किया है उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं. टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन बी अकाउंटेबल. हम कितने अपनी अकाउंटेबिलिटी को किस तरह से उसका निर्वहन करते हैं कि जो हमने पैरामीटर्स स्थापित किए हैं, जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हमने स्थापित किया है, वो क्वालिटी बेंचमार्क उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, वो कमजोर ना पड़ने पाए. तो ये एक दूसरा एक्सपेक्टेशन NAAC का हर एक संस्था से होता है. और तीसरा एक्सपेक्टेशन होता है क्वालिटी इनहेंसमेंट का. ऑटोनॉमी. हम अपनी ऑटोनॉमी का, हमारे पास जो क्षमता है, हम अपनी ऑटोनॉमी का किस तरह से प्रयोग करते हैं और कैसे क्वालिटी संवर्धन का प्रयत्न अपनी संस्था में करते हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो कैरिकुलम डिजाइन हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन हो,
चाहे वो रिसर्च इनोवेशन हो, चाहे बेस्ट प्रैक्टिसेज हो, कोई भी क्राइटेरिया, जो 7 क्राइटेरिया हमारे पास हैं, हम उसमें क्वालिटी इन्हेंसमेंट का प्रयत्न करते रहें और हमारे पास जो ऑटोनॉमी है हम उसका कैसे प्रयोग करते हैं और किस तरह से अपने यहाँ गुणवत्ता का संवर्धन करते हैं। ये तीनों बातें हर एक क्राइटेरिया के लिए जरूरी है और यही नायक हमसे एक्सपेक्ट करता है। और अगर हम अपने इन एक्सपेक्टेशंस को बेहतर तरीके से कंप्लाई कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारा क्रेडिट बेहतर हो सकता है। हम आगे चलते हैं। वी मस्ट फोकस ऑन 3D प्रिपरेशन। 3D मॉडल प्रिपरेशन पे फोकस जरूरी होता है। जो अभी वर्तमान का जो नए रिवाइज्ड असेसमेंट पैरामीटर जो हमारे पास है फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क में हम सभी जानते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स का होता है। हमें संख्यात्मक आंकड़े उनको उपलब्ध कराने पड़ते हैं और 70% इवेल्युएशन ऑफ साइट होता है और 30% इवेल्युएशन ऑन साइट होता है, जहां पे हमारा इंटरेक्शन पीयर टीम के सदस्यों के साथ होता है। तो ये 3D जो मॉडल प्रिपरेशन है, डॉक्यूमेंटेशन, हमारे पास बेहतर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि नायक किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि नहीं। अगर हम प्रायोरिटी बेसिस पे शुरू से अपने डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करते रहें और उसके बेहतर डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और फिर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर पाए, उसका डिस्क्रिप्शन दे सकें। और तीसरे नंबर पे डाटा प्रेजेंटेशन, हम अपने डाटा को प्रेजेंटेबल बना पाए। कई बार ऐसा होता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हमने देखा है कि जब डीबीबी प्रोसेस शुरू होता है तो बहुत सारे डाटा जो हमने अपलोड किया है उसके बारे में वो हमसे क्वेरी चाहते हैं और फिर हम उस क्वेरी को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हमने अपने डाटा तो हमारे पास है, हमारे पास बहुत सारा डाटा है, लेकिन हम उस डाटा को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते हैं, प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं और फिर हमें बहुत सारी क्वेरीज का जवाब देना पड़ता है और कई बार हम कुछ क्वेरीज का जवाब देने में असफल रहते हैं और हमारा क्रेडिट प्रभावित होता है। तो ये 3D मॉडल प्रिपरेशन हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए प्रारंभ से, जब से हम तैयारी करना शुरू करें नैक की। डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन और डाटा प्रेजेंटेशन। हमारा डाटा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जिस फॉर्मेट में वो चाहते हैं उस फॉर्मेट में हमको देना है और इसीलिए उन्होंने एसओपी डाल रखा है। हमको एसओपी को डाउनलोड कर लेना चाहिए। जो टीम हमारी एसएसआर तैयार कर रही है उसको एसओपी के हिसाब से क्या क्या वो मांग रहे हैं, किस तरह से किस फॉर्मेट में मांग रहे हैं, और उसके बाद डाटा टेम्पलेट्स हमारे पास आई हैं, डाटा टेम्पलेट्स को देखना चाहिए। उसके हिसाब से हमें अपनी जानकारियों को संकलित करना चाहिए और उसके बाद एसएसआर की तैयारी करनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट बात हम आपसे शेयर करना चाह रहे थे। हम लोग कैरिकुलम की बात हमें करना है आज। हम सभी जानते हैं कि कैरिकुलम इज द की इन आवर एंटायर क्वालिटी इनिशिएटिव एंड क्वालिटी प्रोसेस। हमारे पूरे गुणवत्तापूर्ण पहल की प्रक्रिया में कैरिकुलम बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। और हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा कैरिकुलम कितना डायनेमिक और कितना वाइब्रेंट है। टू व्हाट एक्सटेंट वी आर हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैरिकुलम। हम किस तरह से लर्नर की इच्छाओं के हिसाब से अपने कैरिकुलम को डिजाइन कर रहे हैं, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्व की बात होती है। और जब ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो आपके पास तो एक बहुत बड़ा कैनवस है और डिस्टेंस लर्निंग भी आपके यहाँ है और आपको ILMS पर फोकस करना होता है, इंटीग्रेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे फोकस करना होता है। और इसके अलावा IT रिसोर्सेज जो हैं उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो बहुत वास्ट कैनवस आपका है, तो इसलिए हमें कैरिकुलम पर फोकस करना आवश्यक है। 150 मार्क्स का है। सामान्यतः ये कहा जाए तो टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन से कम मार्क्स इसमें है, लेकिन ये मार्क्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम स्मार्टली काम करें कैरिकुलम डिजाइन में, कैरिकुलम के इम्प्लीमेंटेशन में, तो हमें इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो कैरिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट जो क्राइटेरिया फर्स्ट है, इसमें 4 की इंडिकेटर्स हैं, 3 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं और 12 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं। कुल 15 मैट्रिक्स हैं, इन पर हमें फोकस करना है। हर एक की इंडिकेटर का जो वेटेज है
हम लोग ये सब जानते हैं, हमारे पास मैनुअल होगा, निश्चित रूप से होगा, और हमने उस मैनुअल को देखा भी होगा। कैरिकुलम प्लानिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये 60 वेटेज मार्क का है, 60 वेटेज मार्क हमको इस पे मिलते हैं अगर हम कैरिकुलम को अच्छी तरह से प्लान करते हैं, डिजाइन करते हैं और डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लर्नर, जो सीखने वाला है उसकी आवश्यकता के अनुसार। अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने चॉइसेस हैं, व्हाट चॉइसेस वी आर ऑफरिंग टू द स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थियों को कौन से चॉइसेस किस तरह के ऑफर कर रहे हैं। लैटरल मोबाइलिटी, मल्टी एग्जिट एंड मल्टी एंट्री सिस्टम है कि नहीं है, ये अगर हम देखते हैं तो 40 मार्क्स का है, 40 वेटेज हम इस पे प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी पर्याप्त है। सबसे बड़ी बात यह है, वी हैव टू जस्टिफाई, हमारे पास जो कुछ भी है दैट शुड बी जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं, उनके पास बहुत अच्छे उन्होंने काम किए हुए हैं, लेकिन जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रेजेंटेबल, हम अपने डाटा को प्रेजेंटेबल नहीं बना पाते हैं, इसलिए हमारा वैल्यूएशन थोड़ा सा, असेसमेंट थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और तीसरा जो की इंडिकेटर है, कैरिकुलम इनरिचमेंट, हमें कैरिकुलम को इनरिच करना चाहिए करंट, ग्लोबल, लोकल और नेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से, इंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से और इनोवेशन के हिसाब से हमें उसको इनरिच करते रहना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास एक रोबस्ट फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, एक बेहतर फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, और हम निरंतर विद्यार्थियों से, स्टेक होल्डर्स से, एल्यूमिनाइज से, एम्प्लॉयर्स से और जो फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास जो स्टाफ है उनका हम बीच बीच में फीडबैक कलेक्ट करते रहें। फीडबैक किस तरह से हम कलेक्ट कर रहे हैं, हमको उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इसको भी हमको फोकस में रखना है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा चर्चा इसकी करते हैं, उसके बाद फिर जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हमको अपना एसएसआर भरना होता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो जो कैरिकुलम है हमारा, इट नीड्स टू रिफ्लेक्ट लोकल, रीजनल, नेशनल एंड ग्लोबल नीड्स ऑफ द सोसाइटी। समाज की जरूरतें क्या है, लोकल नीड्स को कैसे एड्रेस करता है हमारा कैरिकुलम, रीजनल और नेशनल नीड्स और जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनको कैसे एड्रेस करता है हमारा कैरिकुलम, इस पर हमें फोकस करना है। और इसीलिए आगे हम लोग अभी चलते हैं प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, कोर्स या लर्निंग आउटकम की जब बात करते हैं, तो जब इन सब चीजों को करना है तो ये ध्यान देना होगा कि हमारा जो कैरिकुलम ये जस्टिफाइड हो, कि जो प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं वो प्रोग्राम इस तरह से लोकल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, नेशनल या ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार जो है ये हमारा पाठ्यक्रम है और उसको फुलफिल करता है। तो ये हमें जस्टिफाई करना होता है। विजन एंड मिशन, हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने शुरू में जब अपना प्रारंभ करते हैं, प्रोफाइल शुरू करते हैं संस्था का, उसी समय विजन और मिशन तैयार कर लेते हैं और इसमें बीच बीच में रिवीजन करते रहते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि द विजन एंड मिशन दैट वी हैव सिलेक्टेड, वो विजन और मिशन जो हमने अपने लिए लिया हुआ है, हमारे पाठ्यक्रम में हमारा विजन और मिशन रिफ्लेक्ट हो, उसमें गैप ना हो। कई बार ऐसा होता है कि विजन हमारा कुछ कह रहा है, हमने लिखा हुआ साइंटिफिक टेम्पर, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में साइंटिफिक टेम्पर जैसी कोई बात नहीं है। तो ये जो गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए। तो जब हम पाठ्यक्रम को बनाएं, उसको डिजाइन करें, डेवलप करें, यूनिवर्सिटीज पाठ्यक्रम डेवलप करती हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि सभी यूनिवर्सिटीज ने बहुत अच्छे तरीके से अपने पाठ्यक्रम को डेवलप किया हुआ है, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो विजन मिशन है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। ये एक महत्वपूर्ण बात है कैरिकुलम। इसके बाद जो हम सेल्फ लर्निंग मटेरियल्स टारगेट ग्रुप को, लर्नर्स को उपलब्ध कराते हैं, वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में कि हम उनको क्या और किस तरह का सेल्फ लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराएं। तो कैरिकुलम डिजाइन के समय हमें इन बातों पर फोकस करना है और भी relevant to the local needs and in tune with the emerging national and global trends। आज की जरूरत क्या है, what are the national trends, what are the global trends, हमें इस पर फोकस करना है। जब हम अपना कैरिकुलम बनाएं तो हमारे पाठ्यक्रम में इसका पार्ट जरूर होना चाहिए। और इसके अलावा जो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजीज हमारे पास हैं, वी हैव टू इंटीग्रेट आवरसेल्फ टू आईटी। हमें आईटी के साथ, आईएलएमएस के साथ, मूक्स के साथ, स्वयं के साथ
और दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो डिस्टेंस लर्निंग में हमारे जो लर्नर ग्रुप हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं, उनके साथ अपने आप को इंटीग्रेट करना आवश्यक है और हमारा करिकुलम इस चीज को भी रिफ्लेक्ट करे, ये हमें सुनिश्चित करना होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात होता है जो नैक हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम हाउ फ्रीक्वेंटली डू वी रिवाइज आवर प्रोग्राम, हम अपने पाठ्यक्रम को किस तरह से संशोधित करते हैं, उसमें परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि परिवर्तित जब समय बदलता है तो हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं और आवश्यकताओं के बदलने के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में भी स्लाइट चेंज, कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें होना चाहिए। अगर हम प्रोग्राम को में परिवर्तन करते हैं तो वो हमारे लिए फायदा है, क्योंकि जब हम फीडबैक लेते हैं, फीडबैक का फॉर्मेट बनाते हैं, तो उस फीडबैक के फॉर्मेट में हम ये बातें रखते हैं कि खासतौर पे हम कैरिकुलम पर ही अपना फीडबैक लेते हैं, टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन और असेसमेंट पे अपना फीडबैक लेते हैं, और इसलिए जो है जो फीडबैक हमको प्राप्त होता है उस फीडबैक को दिमाग में रखते हुए हमारा जो पाठ्यक्रम है हमें उन अपेक्षाओं को रखने की कोशिश करनी चाहिए जो स्टेक होल्डर्स हमसे करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हमसे करते हैं, जो स्टूडेंट्स करते हैं हमसे। तो इस चीज को भी हमें अपने करिकुलम में रखने की आवश्यकता है। इसके बाद ये प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम और कोर्स आउटकम हम सभी लोग जानते हैं और हमें इसका अंतर बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। हमने जितने भी प्रोग्राम अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं, अपनी संस्था में जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं, उसका प्रोग्राम आउटकम स्टेटमेंट बहुत ही क्लियर होना चाहिए और वो अपनी हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे उसको डिस्प्ले किया जाना चाहिए, जिससे कि जो लर्नर हैं उसको भी वो भी उसके बारे में जान सके, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी उसके बारे में जान सके। तो इसलिए प्रोग्राम आउटकम का जो स्टेटमेंट है इट शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। हर एक पाठ्यक्रम का, हर एक प्रोग्राम का हमारा आउटकम निर्धारित होना चाहिए। इसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंतर्गत हम कौन कौन सी डिसिप्लिन को पढ़ा रहे हैं उसका स्पेसिफिक आउटकम हमारे पास तय होना चाहिए। और इसके बाद हर एक पेपर का जो क्वेश्चन, जो पेपर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम हमारे पास होना चाहिए। इस चीज की अपेक्षा हमसे नैक करता है। तो प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब हम नैक की तैयारी करना शुरू करते हैं उस समय हम इन बातों पे फोकस करते हैं, और कई बार बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये तय नहीं कर पाती हैं कि इनका तीनों का डिफरेंस क्या है, प्रोग्राम आउटकम कैसे बनाएं। और उसके बाद जितने भी प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, बीए है, बीएससी है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम है, बीकॉम है, इन सभी का आउटकम हमारा होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हम पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उनका स्पेसिफिक आउटकम होना चाहिए, और उन सब्जेक्ट के अंतर्गत जो पेपर्स पढ़ा रहे हैं उनका कोर्स आउटकम या लर्निंग आउटकम होना चाहिए। ये अच्छी तरह से हमको बनाना चाहिए और अपनी वेबसाइट पे इसको डिस्प्ले करना चाहिए। और ये ध्यान देना है कि हमारा जो प्रोग्राम आउटकम बनता है उसमें हमारा विजन और मिशन रिफ्लेक्ट हो। हमारा जो प्रोग्राम आउटकम बनता है उसमें ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमने अपनाया हुआ है, ये पाठ्यक्रम हमारे प्रोग्राम आउटकम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर हमने एम्प्लॉयबिलिटी पर फोकस किया हुआ है तो वी हैव टू मेंशन इन आवर प्रोग्राम आउटकम that this program outcome is in tune with employability, entrepreneurship and innovation। तो हमको ये बताना है कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें एम्प्लॉयबिलिटी का पुट है। हर एक जो सब्जेक्ट हमने बच्चों को के लिए रखा हुआ है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसमें एम्प्लॉयबिलिटी इस तरह से हो सकती है, इंटरप्रेन्योरशिप इस तरह से हो सकता है, इनोवेशन के चांसेस हैं, ये हमें फोकस करना है। इस पर हमें खासा मेहनत करनी है और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों ने बिल्कुल किया हुआ होगा। आप लोगों ने निश्चित रूप से इसको बनाया होगा, अपना प्रोग्राम आउटकम बनाया होगा, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बनाया होगा और कोर्स आउटकम बनाया होगा। अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम लोग कर रहे थे। हमारे पास हमारे जो लर्नर्स हैं उनके पास चॉइस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर बेंट ऑफ माइंड। अपने मानसिक झुकाव के अनुसार, अपने एप्टीट्यूड के अनुसार, अपनी लाइक की, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी प्रायोरिटी के अनुसार सिलेबस चुनने में या पाठ्यक्रम चुनने में वो कितने स्वतंत्र हैं। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की हमारे पास व्यवस्था है कि नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी कहीं से कोई कोर्स करके
निश्चित क्रेडिट लेके आ रहा है तो उसको क्या हमारी संस्था में आगे या दूसरे किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, लेटरली और वर्टिकली प्रवेश मिल सकता है कि नहीं। जैसे कोई पीजीडीसीए करके आ रहा है तो क्या हम उसको एमएससी सीएस में प्रवेश दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो लैटरल और वर्टिकल मोबाइलिटी हमारे पाठ्यक्रम में है कि नहीं, ये हमको तय करना होगा कि जो पाठ्यक्रम हम विद्यार्थियों को ऑफर कर रहे हैं उसमें उनको छूट होनी चाहिए कि दे कैन चूज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, अपनी प्राथमिकता के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार, अपनी अभिवृत्ति के अनुसार वो पाठ्यक्रमों का चुनाव कर सके। इस तरह का स्वतंत्रता हमारे कैरिकुलम में होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना है और इस हिसाब से हमें पाठ्यक्रम बनाना है। मॉड्यूलर प्रोग्राम्स परमिटिंग फ्लेक्सिबल एग्जिट ऑप्शंस एंड लैटरल एंट्री एज आर डिजायरेबल। जो मॉड्यूल्स हैं, जो मॉड्यूलर प्रोग्राम्स हमारे हैं, वो भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए और उसमें विद्यार्थियों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जिस जगह पर वो एग्जिट करना चाहें वो एग्जिट करें और उसका क्रेडिट उनको अवार्ड हो, और जहां पे अगर कहीं दूसरी जगह से क्रेडिट लेके आ रहे हैं तो उनके लिए एंट्री की व्यवस्था हमारे पाठ्यक्रम में हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कैरिकुलम के अंतर्गत। प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये भी सुनिश्चित करना है। हमारे जो प्रोग्राम्स हो उन प्रोग्राम्स के अनुसार हमारे पास संसाधन हो। हमारे पास जो लर्निंग सेंटर्स हमने बना रखे हैं, रीजनल सेंटर्स जो बना रखे हैं, वहां पे जो पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस कर रखा है, उनके पास जो संसाधन है उस संसाधन की के अनुपात में या उसी के अनुरूप हमारे पाठ्यक्रम हो, ये हमें सुनिश्चित करना आवश्यक है। सीबीसीएस हम सभी जानते हैं कि अब तो लगभग सभी संस्थाओं ने, अधिकांश संस्थाओं ने सीबीसीएस को इंट्रोड्यूस कर लिया होगा अपने यहाँ, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, और आपके यहाँ भी निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस हुआ होगा। हम सीबीसीएस को किस तरह से हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ये जो है हमारे प्रोग्राम की, हमारे कैरिकुलम की अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी को तय करता है। तो वी हैव टू फोकस टू व्हाट एक्सटेंट वी आर फ्लेक्सिबल, वी आर लिबरल इन आवर अकादमिक प्रोग्राम्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जो तीसरा पार्ट है जिसमें हमें 30 का 30 मार्क्स का वेटेज है, उसमें कैरिकुलम इनरिचमेंट। हम कैरिकुलम को इनरिच करते रहें, उसमें हम नए प्रोग्राम्स लाते रहें, वैल्यू एडेड कोर्सेज जोड़ते रहें, स्किल से संबंधित कोर्सेज जोड़ते रहें, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य होता है वो है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ये हमारे कैरिकुलम का मुख्य उद्देश्य होता है और इसीलिए हमारा कार्यक्रम वाइब्रेंट, हमारा पाठ्यक्रम जो है वाइब्रेंट होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, और उसमें ऐसे इनपुट्स होने चाहिए जो लर्नर के अंदर ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप कर सके, स्किल को डेवलप कर सके, एम्प्लॉयबिलिटी उनके अंदर पैदा कर सके। तो ये चीजें हमको ध्यान देना है अपने कैरिकुलम में। और टाइम टू टाइम बहुत सारे पाठ्यक्रम भोज यूनिवर्सिटी ने अपने पास रखा हुआ है, हमने उनके पाठ्यक्रम को देखा है, काफी रिच पाठ्यक्रम देते रहते हैं, लेकिन हमें कैसे कैसे परिवर्तित करते रहते हैं और क्या क्या नए पाठ्यक्रम जोड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में हमने कौन से नए पाठ्यक्रम जोड़े, ये जरूरी है। 30 आवर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमारे पास कितने हैं और उन कोर्सेज को हम कैसे चला रहे हैं, तो ये चीज फोकस करना इस पे आवश्यक है। वैल्यू एडेड कोर्सेज हो गए, लाइफ स्किल से रिलेटेड कोर्सेज हो गए, योगा इत्यादि हम इसमें जोड़ सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज की बात कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, बहुत सारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड पाठ्यक्रम है। और ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज को हम अपने कैरिकुलम के साथ जोड़ सकते हैं इन एडिशन। 30 आवर्स, 40 आवर्स या 60 आवर्स कैसे पाठ्यक्रम अगर विद्यार्थी करते हैं, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पाठ्यक्रम है, तो निश्चित रूप से हमारा जो क्रेडिट है वो बेहतर होता है और हमें अच्छे वेटेज मिलने की संभावना होती है। ऐसे पाठ्यक्रम दैट आर एसोसिएटेड टू प्रमोट ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों को बढ़ाने वाले जो पाठ्यक्रम है, प्रोफेशनल इथिक्स को जो बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम है, ऐसे कोर्सेज को हमारे पाठ्यक्रम में जुड़ना चाहिए टाइम टू टाइम, तो हमारा क्रेडिट हमारा बढ़ सकता है। इसी तरह से क्रॉस कटिंग इश्यूज की बात होती है, जेंडर सेंसिटिविटी, ऐसे पाठ्यक्रम जो जेंडर सेंसिटिविटी से जुड़े हुए हैं, जेंडर जस्टिस से जुड़े हुए हैं,
जेंडर इक्विटी से जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे पाठ्यक्रमों को भी, जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं या सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, उनको हमें जोड़ने चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि हम जो पाठ्यक्रम अपना अपना रहे हैं उसमें इस तरह के पाठ्यक्रमों का पुट पहले से इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्रॉस कटिंग इश्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हमें जस्टिफाई करना होगा कि ये पाठ्यक्रम हमारे पास हैं जो क्रॉस कटिंग इश्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी से जुड़ा हुआ पाठ्यक्रम जो हो, हमें उसको भी बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए और उसमें चेंजेस भी लाते रहना चाहिए। और हमें अपनी आवश्यकता और अपने संसाधनों के अनुरूप, हमारे पास संसाधन क्या है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और ऐसे पाठ्यक्रमों को जोड़कर हम अपने कैरिकुलम को इनरिच कर सकते हैं। इंक्लूसिविटी, हम जानते हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे सामने आई है उसमें भी 3 बातों पे फोकस किया जाता है, इक्विटी, एक्सेस और इंक्लूजन। तो हमें इस पर फोकस करना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम हो एक्सेसिबल हो और उस सब के लिए हो, इक्विटी पर हम ज्यादा फोकस करें, और इंक्लूसिविटी उसमें हो कि हर सेक्शन, हर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति उस पाठ्यक्रम से जुड़ सके, उसका एक्सेस सुनिश्चित हो सके, ये हमें ध्यान देना है। क्रिएटिव और डाइवर्जेंट कॉम्पिटेंसी से संबंधित जो पाठ्यक्रम है, जो क्रॉस कटिंग इश्यूज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को हमें अपने पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, एक सप्लीमेंट्री पाठ्यक्रम के रूप में अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ना चाहिए। नेशनलिज्म, ह्यूमन राइट्स, बहुत सारे क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रमों में भी, और वैल्यू एडेड कोर्सेज के रूप में भी हम जोड़ सकते हैं ऐसे पाठ्यक्रमों को। एम्प्लॉयबिलिटी, इंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट, ये नायक का बहुत बड़ा फोकस है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी बहुत बड़ा फोकस है। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज हमारे पास हैं, उन कोर्सेज में एम्प्लॉयबिलिटी का इनपुट है कि नहीं, इंटरप्रेन्योरशिप का इनपुट है कि नहीं, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट का इनपुट है कि नहीं। तो ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और वी हैव टू जस्टिफाई टू व्हाट एक्सटेंट आवर प्रोग्राम्स इंक्लूड एम्प्लॉयबिलिटी, इंक्लूड द इनपुट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी के इनपुट को किस सीमा तक हमारे पाठ्यक्रमों में दिया गया है, रखा गया है। इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे वो प्रोत्साहित करते हैं, स्किल डेवलपमेंट को कैसे ऐसे अलग से हम जोड़ के शॉर्ट टर्म कोर्सेज के रूप में, वैल्यू एडेड कोर्सेज के रूप में, सर्टिफिकेट कोर्सेज के रूप में हम अपने पाठ्यक्रम को इनरिच कर सकते हैं और अच्छा क्रेडिट नैक के सामने अच्छा क्रेडिट हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें स्मार्टली हमको इन सब चीजों के बारे में प्रयास करना है। फीडबैक मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, हमारे पास एक साउंड रोबस्ट फीडबैक मैकेनिज्म होनी चाहिए, और समय समय पर, चाहे आप एनुअली आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका एक क्लियर कट पॉलिसी आपके पास होना चाहिए कि आप साल भर में एक बार आप फीडबैक कलेक्ट करते हैं लोगों से। और ये फीडबैक जो होगा, रेलेवेंस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ कैरिकुला, जो पाठ्यक्रम हमने इंट्रोड्यूस किया है वो कितना रेलेवेंट है, वो कितना इम्प्लायबल है, की संभावनाएं कितनी है, ये हमारे फीडबैक के अंतर्गत रहना चाहिए। और नॉलेज के डोमेन में किस तरह के डेवलपमेंट्स आए हैं, कौन सी स्किल आज के लिए रेलेवेंट है, और उस स्किल को हमने इंट्रोड्यूस किया है कि नहीं किया है, उस स्किल का फायदा जो लर्नर्स हैं उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इससे रिलेटेड हमारे पास फीडबैक का फॉर्मेट डेवलप होना चाहिए। और वो फॉर्मेट चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन मोड में हमें स्टूडेंट से कलेक्ट करना चाहिए, स्टेक होल्डर्स जो हमसे कलेक्ट करना चाहिए, एल्यूमिनाई जो है उनसे कलेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारी जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं, क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, और ऐसी स्थिति में उनके लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो हमने किस तरह से रिसेंट टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया हुआ है, इसके संबंध में भी क्वेश्चंस, क्वेरीज, फीडबैक के अंतर्गत होना चाहिए। हमारा कैरिकुलम कितना अप्रोप्रिएट है, हम किस तरह से समाज की, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, और किस तरह से हम अपनी एक्सेसिबिलिटी को सुनिश्चित कर रहे हैं। दूर स्थित लर्नर है उसको कैसे हम, उसकी एक्सेसिबिलिटी को कैसे सुनिश्चित करें, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की क्वेरीज हमारे फीडबैक में होना चाहिए।
तो एक फीडबैक का फॉर्मेट हमारे पास हो और हम उस फीडबैक स्टूडेंट्स के लिए अलग हो, एल्यूमिनाइज के लिए अलग हो, एम्प्लॉयर्स के लिए अलग हो, इस तरह से हम फीडबैक सब करते हैं। और केवल फीडबैक कलेक्शन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हम फीडबैक को कलेक्ट करें, हम फीडबैक को एनालाइज करें, और इसके साथ ही साथ हमको ये ध्यान देना है कि हमने जो रिस्पांस हमको मिला है, जो फीडबैक हमको मिला है, टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव अप्लाइड द सजेशंस गिवन इन द फीडबैक। वो जो सजेशंस उसमें दिए गए हैं उसको हम किस तरह से एड्रेस करते हैं, किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई किया है या नहीं किया है, इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस तरह से फीडबैक कलेक्शन, फीडबैक एनालिसिस और फीडबैक के ऊपर हम क्या एक्शन लेते हैं, ये जरूरी है हमारे लिए। अब हम जो हमारे जो टेम्पलेट दिया हुआ है जिसको हमें भरना है, उस पर हम फोकस करते देखें उसमें क्या क्या कौन सी चीजें हमसे चाहिए जाती हैं नैक के द्वारा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है करिकुलम प्लानिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट में 1.1.1 QLM क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। हमें 1000 वर्ड्स में अपने इनिशिएटिव्स को बताना है, और इनको बताने से पहले ये इनिशिएटिव्स हमारे पास होने चाहिए। करिकुलर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स have relevance to the local, national, regional and global needs। आपके पास क्लियर कट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि हमने जो पाठ्यक्रम अपनाया है ये इस तरह से लोकल नीड्स को एड्रेस करता है, ये इस तरह से ग्लोबल जो ट्रेंड्स हैं, ग्लोबल जो नीड्स है, ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स हैं आज की सोसाइटी की, उसको एड्रेस करता है। ये हमें अपनी 1000 वर्ड्स में जब हम लिखें तो क्लियर कट इंटरप्रिटेशन हमारे पास होना चाहिए। हमारा जो प्रोग्राम आउटकम है उसमें ये पाठ्यक्रम का जो ये पहलू है ये उसमें विजिबल होता है। जो हमने प्रोग्राम आउटकम बनाया है, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम बनाया है, लर्निंग आउटकम या कोर्स लर्निंग आउटकम जो बनाया हुआ है, जो ऑफर किया हुआ है, उसमें लोकल नीड्स विजिबल है, लोकल नीड्स पे फोकस है, नेशनल नीड्स पे फोकस है, रीजनल नीड्स पे फोकस है, और ग्लोबल जो नीड्स है उस पर फोकस है। तो हमें क्लियर कट तरीके से स्पष्ट करना है कि किस तरह से ये सारी चीजें इसमें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। और 1000 वर्ड्स में प्रोवाइड वेब लिंक टू करिकुला implemented by the university, mapping of curricula to program outcomes, outcome analysis of program specific learning outcomes and course learning outcomes, minutes of relevant board of studies, school board, academic council, any other relevant information। हम सभी लोग एज ए पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी सिस्टम ये सारा काम करते हैं, बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक कराते हैं। हमारा पाठ्यक्रम जो भी हम लागू कर रहे हैं, इवन जो वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं उनको अगर हम लागू कर रहे हैं तो दैट शुड आल्सो बी रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज, बाय द अकादमिक काउंसिल, जो कुछ भी हमारे पास है उनके द्वारा रिकमेंड होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका डाटा उनको उपलब्ध कराना है। और अगर हम डाटा उपलब्ध नहीं कराते हैं तो डीबीबी के दौरान हमसे एक क्वेरी किया जाएगा कि आपने जो पाठ्यक्रम लागू किया, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मिनट्स भी इसमें अटैच करिए। इसमें लिखा भी है, लिंक दीजिए। आपकी वेबसाइट पे अगर प्रोग्राम आउटकम अगर लगा हुआ है तो उस लिंक को डिस्प्ले हो रहा है, तो उस लिंक को आपको प्रोवाइड करना है, वहां से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि संस्था ने अपने प्रोग्राम आउटकम को, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को, कोर्स आउटकम को और लर्निंग आउटकम को क्लियर कट तरीके से स्टेट किया हुआ है और उसको वेबसाइट पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये हमको स्मार्टली देखना है, ध्यान से इस चीज को देखना है। नए प्रोग्राम्स हमने कितने इंट्रोड्यूस किए विद इन लास्ट 5 ईयर्स, विगत 5 वर्षों में अगर हमने कोई नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है तो उस प्रोग्राम की जानकारी उनको उपलब्ध कराना है। नंबर ऑफ न्यू प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, और डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, उस डाटा टेम्पलेट के फॉर्मेट में हमको जिस तरह से फॉर्मेट बना है उसी तरह से उस फॉर्मेट में हमको दिखाने की कोशिश करना है। प्रोग्राम का कोड, नेम्स ऑफ द न्यू प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस, कौन सा नया प्रोग्राम आपने इंट्रोड्यूस किया, किस डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और कब इंट्रोड्यूस किया। इस तरह ये फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यू प्रोग्राम्स का परसेंटेज क्या है जो हमने ऑफर किया है पिछले 5 वर्षों में अगेंस्ट द प्रोग्राम्स ऑलरेडी ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। ये मिनट्स ऑफ रेलेवेंट अकादमिक काउंसिल, स्कूल बोर्ड, बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग,
इनका जो हमारे पास मिनट्स हैं उनको अलग से हमको रखना होगा और उसको अपलोड करना होगा टू जस्टिफाई द कैरिकुला, द न्यू प्रोग्राम दैट द यूनिवर्सिटी हैज ऑफर्ड। ये हमको ध्यान देना है। ये डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, इस डाटा टेम्पलेट में हमको भरना है नेम ऑफ द न्यू प्रोग्राम, प्रोग्राम का कोड क्या है, नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड स्कूल, जिस विभाग ने इसको शुरू किया है, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन, किस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको हमें इस डाटा टेम्पलेट के हिसाब से भरना है। तो कुल मिला के अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियस होके, हमें पता है कि आप सभी लोग नैक की तैयारी में जा रहे हैं तो ये सारा काम आपने किया हुआ होगा, लेकिन एक बार हमको इवेल्युएट करना है अपने आप को कि कौन सी कमियां हैं, कहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे हैं और उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। रिवीजन ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का रिवीजन हम कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं, आवश्यकता के अनुसार कितने प्रोग्राम्स हम नए ले आते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स रिवाइज्ड आर अंडर रिवीजन ओवर लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों में, विगत 5 वर्षों में आपने कितने प्रोग्राम्स को रिवाइज किया, कितना पार्ट रिवाइज किया है, इसका डाटा हमारे पास होना चाहिए और हम उस डाटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में नायक के सामने डीबीबी से पूर्व अपने एसएसआर के साथ उनको भेज सके। डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, प्रोग्राम कोड, नेम्स ऑफ द प्रोग्राम रिवाइज्ड, कौन सा प्रोग्राम आपने रिवाइज किया, किस डिपार्टमेंट स्कूल के द्वारा उसको रिवाइज किया गया है, ईयर ऑफ इनिशिएशन और ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को हमको भरना है। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिवाइज्ड ओवर द लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों में जितने प्रोग्राम्स आपने रिवाइज किए हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ओवर द लास्ट 5 years, और पिछले 5 वर्षों में कितने प्रोग्राम आपने ऑफर किए हैं। इस तरह से आप उसका रेशियो निकाल सकते हैं और उसकी जानकारी आपको देना है। मिनट्स ऑफ रेलेवेंट एकेडमिक काउंसिल बोर्ड ऑफ स्टडीज, ये हमको ध्यान देना है। जो नया रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क है वो हमसे हर एक चीज का जस्टिफिकेशन चाहता है, एंड वी हैव टू बी रेडी विथ adequate with proper justification of the claims that we are going to have. तो ये है, ये डाटा टेम्पलेट है। 1.1.3 percentage of programs has been revised are under revision year wise 5 years, पिछले 5 वर्षों में जो आपने रिवाइज किया है वो डाटा आपको कलेक्ट करना होगा। नेम्स ऑफ द प्रोग्राम रिवाइज, किस प्रोग्राम में आपने रिवीजन किया है, उसका कोड क्या है, किस स्कूल किस डिपार्टमेंट ने उसको रिवाइज किया है, कब उसने रिवाइज किया है, ये हमको इसके हिसाब से भरना है। तो ये कलेक्ट है। इसके बाद आईटी इंटीग्रेशन की बात हम लोग अभी कर रहे थे। कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड एज मूक्स आर यूजिंग ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, हम मूक्स से जुड़े हुए पाठ्यक्रम को ऑफर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किस तरह से आईटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने करिकुलम के अंतर्गत। परसेंटेज ऑफ कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड एज मूक्स आर यूजिंग ओईआरस टू सप्लीमेंट द एग्जिस्टिंग कोर्सेज, हमारे पास जो पाठ्यक्रम है उनको सप्लीमेंट करने के लिए हम मूक के पाठ्यक्रमों को कितना लागू कर रहे हैं या ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से जुड़े हुए पाठ्यक्रम कितना लागू कर रहे हैं, ये हमको इसका डाटा रखना है, देना है। और अब तो हमें लगता है बहुत सारी संस्थाएं, अधिकांश संस्थाएं स्वयं पोर्टल से जुड़ी हुई है, उन्होंने अपना लोकल चैप्टर बना रखा है और बहुत सारे ऐसे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं और आप भी निश्चित रूप से जुड़े हैं। तो उनका डाटा हमारे पास होना चाहिए, उस डाटा को हमें उपलब्ध कराना है। नेम ऑफ द प्रोग्राम विद प्रोग्राम कोड, नेम ऑफ द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड एज मूक्स आर यूजिंग ओईआरस विद कोर्स कोड, क्रेडिट वेटेज ऑफ द कोर्सेज। तो ये जानकारियां हमको अपने एसएसआर में अपलोड करना है, उसमें डालना है, जिससे कि हम अच्छा क्रेडिट क्लेम कर सकें। ये फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इन विच मूक्स आर ओईआरस यूज्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर, पिछले साल विगत वर्ष आपने कितने पाठ्यक्रम इस तरह के इंट्रोड्यूस किए और कितने कोर्सेज हैं, इस तरह से अपना रेशियो आपको निकालना है। वेब लिंक टू द लिस्ट ऑफ मूक्स अप्रूव्ड, तो मूक कोर्स आपने लागू किया है उसका वेब लिंक आपको उपलब्ध कराना होगा। बोर्ड ऑफ स्टडीज में अगर आपने उसको रखा हुआ है तो उसके मिनट्स भी आपको देने पड़ेंगे और जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमने अप्रोप्रिएटली इस पाठ्यक्रम को अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया है और वो विद्यार्थी इन पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो डाटा टेम्पलेट है उस डाटा टेम्पलेट में आपको ये जानकारी भरनी है। ये डाटा टेम्पलेट है 1.1.4 percentage of courses being offered as MOOCs are using
open educational resource to supplement existing courses in the preceding academic year। तो हमको ये देखना है कि अगर हमारे पास समय है, वैसे तो हम पहले से ही विजिलेंट है काफी, और बहुत सारी संस्थाओं ने, यूनिवर्सिटीज ने स्वयं को जो है अपनाया हुआ है, उसके जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे उसमें पढ़ भी रहे हैं, ऑनलाइन फायदा उठा भी रहे हैं। लेकिन अगर हम और भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यदि नहीं किया है तो हम ऐसे पाठ्यक्रमों को अपना सकते हैं और उसमें बच्चों को इनरोल करा सकते हैं। प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का कोड, नेम्स ऑफ द कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड एज मूक्स आर यूजिंग OERs, कोर्स कोड, क्रेडिट वेटेज ऑफ द कोर्स, वेब लिंक आपको उपलब्ध कराना है। जिस कोर्स को आपने अपने लिए अडॉप्ट किया है उसका वेब लिंक आपको उपलब्ध कराना है NAAC को। करिकुलम प्लानिंग, डिजाइन एंड डेवलपमेंट का अगला जो भाग है 1.1.5, कुल मिला के हमको ये देखना है कि हम जहां पर हम मजबूत हैं वो तो ठीक है, जहां पे हमको लग रहा है कि हम कमजोर हैं और कुछ नया कर सकते हैं, हमें नया करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा एफर्ट होना चाहिए कि हम हर एक वेटेज को अर्न कर सकें, ये जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड अदर डिजिटल कंपोनेंट्स इन द करिकुलम, दूसरे क्या कंपोनेंट्स आपके पास हैं, दूसरे क्या रिसोर्सेज हैं जो आप बच्चों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी लर्निंग को जो है बेहतर बनाने के लिए। परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स ऑन ऑफर हैव इनकॉर्पोरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदर डिजिटल कंपोनेंट्स इन देयर करिकुलम ओवर द लास्ट 5 years। तो अगर इस तरह के कोई भी पाठ्यक्रम आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उनका भी डाटा पिछले 5 वर्षों का आपको उपलब्ध कराना है। Number of programs in which digital media is used in curriculum over the last 5 years। डिजिटल मीडिया जिसमें आपने यूज किया हो पिछले 5 वर्षों में, उन पाठ्यक्रमों को और जो टोटल पाठ्यक्रम आपने इंट्रोड्यूस किया है उसका जो रेशियो है वो आपको डालना है और ये NAAC के सामने उपलब्ध कराना। ये डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है, इस डाटा टेम्पलेट में आपको जानकारी भरनी है कि किस डिजिटल कंपोनेंट को आपने अपने पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा है और उसका लिंक भी आपको उपलब्ध कराना है। तो ये चीजें हमको एक बार पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से उसको पढ़ के कहाँ पे कौन सी चीज हम जोड़ सकते हैं उसको समझने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी की बात हम लोग अभी कर रहे थे कि हमारा पाठ्यक्रम है कितना फ्लेक्सिबल है, हम लर्नर्स को इतना जो है दे पा रहे हैं। परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय अदर HEIs ओवर द लास्ट 5 years। आपने जो पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस किया है दूसरे जो उच्च शिक्षण संस्थान है उन पाठ्यक्रमों को उन्होंने पिछले 5 वर्षों में किस स्तर तक अपनाया है। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय अदर HEIs ओवर द लास्ट 5 years। डाटा टेम्पलेट है, नेम ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटी अडॉप्टेड बाय अदर HEIs। जो पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया है, जिसको उसने अडॉप्ट किया है, दूसरी संस्थाओं ने उस पाठ्यक्रम को किस सीमा तक अडॉप्ट किया है उसकी जानकारी हमको यहाँ पे रखना है। उसकी एक लिस्ट हमारे पास तैयार होनी चाहिए, कौन कौन सी HEIs हैं और हमारे द्वारा डिजाइन किए हुए किन किन पाठ्यक्रमों को उन्होंने अपनाया है और कौन कौन से पाठ्यक्रम वो संचालित कर रहे हैं। तो इसको हमें ध्यान देना होगा। हमें लगता है कि ये लिस्ट हम सबके पास तैयार होगी क्योंकि हम लोग NAAC की तैयारी के लिए उद्यत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेटर ऑफ एग्रीमेंट, डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स, डिटेल्स ऑफ HEIs, किन HEIs ने, उनकी एक लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए, कौन सी HEIs ने हमारे द्वारा चलाए गए प्रोग्राम को ऑफर किया है और कोई दूसरा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको प्रोवाइड करना होगा NAAC को। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अडॉप्टेड बाय अदर HEIs ईयर वाइज, नेम ऑफ द HEI, नेम ऑफ द प्रोग्राम, ईयर ऑफ एडॉप्शन। तो ये डाटा हमको भरना है और वी हैव टू प्रोड्यूस दिस डाटा बिफोर NAAC के सामने हमको इसको उपलब्ध कराना है DBB के दौरान। CBCS सिस्टम को आपने किस स्तर तक लागू किया है, किन किन पाठ्यक्रमों में CBCS सिस्टम आपने लागू किया है, इसका जस्टिफिकेशन भी हमारे पास होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ डिग्री प्रोग्राम्स इसमें आपने CBS सिस्टम लागू किया है, इलेक्टिव कोर्स सिस्टम आपने इंप्लीमेंट किया हुआ है और किस स्तर तक आपने इलेक्टिव कोर्स को इंप्लीमेंट किया है जो बच्चों को फ्रीडम ऑफ चॉइस उपलब्ध करा पाए। तो इसकी जानकारी भी अगर हमने CBCS, मुझे लगता है कि हम लोगों ने किया हुआ है, सभी लोगों ने CBCS सिस्टम को
आज की आवश्यकता के अनुरूप निश्चित रूप से अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम में और अपनी संस्था में निश्चित रूप से अपनाया हुआ होगा। तो उसका डाटा भी हमें उपलब्ध कराना है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनके अगेंस्ट इलेक्टिव कोर्सेज कौन कौन से हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल क्या है, विद्यार्थी किस तरह से कोर्सेज को ऑप्ट कर सकता है, इसको जो है क्लियर कट तरीके से हमें देखना है। मिनट्स ऑफ रिलेवेंट अकादमिक काउंसिल्स, इसको भी हमें अकादमिक काउंसिल में बोर्ड ऑफ स्टडीज में पास कराना होगा, रिकमेंड कराना होगा और उसका मिनट्स भी हमें उपलब्ध कराना होगा अपने डाटा के साथ, दूसरे डाटा के साथ। ये डाटा टेम्पलेट है, इस डाटा टेम्पलेट को ऑब्जर्व करते हुए हमें अपने पाठ्यक्रम को, जो सीबीसीएस पाठ्यक्रम हमने अपने यहाँ चालू कर रखा है, उस सीबीसीएस पाठ्यक्रम की जानकारी हमें देनी होगी। Name of all programs requiring adoption of CBCS. Name of programs adopting CBCS. Name of all programs adopting ECS. Program code, year of implementation of CBCS या ECS। बहुत ही सिंपल और क्लियर कट बात इसमें है कि जो भी जिस भी प्रोग्राम में हमने CBCS को इंट्रोड्यूस किया है उसकी जानकारी हमको NAAC को उपलब्ध कराना है विथ रेलेवेंट डाटा, विथ रेलेवेंट मिनट्स ऑफ अकादमिक काउंसिल मीटिंग एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक है, अकादमिक बैठक है जिसमें मिनट्स पास हुए, उसके साथ जो है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट हमें NAAC को उपलब्ध कराना है सीबीसीएस सिस्टम के बारे में। इनेबलिंग प्रोविजन फॉर लैटरल एंट्री फॉर लर्नर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के समय में है। हम जानते हैं कि अकादमिक फ्लेक्सिबिलिटी पूरा का पूरा 40 वेटेज मार्क्स है उसका, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम की बात करती है। हमारी यूनिवर्सिटी में क्या मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम हमने अपनाया है कि नहीं? अगर कोई विद्यार्थी किसी क्रेडिट को पूरा कर लिया है तो आगे उस क्रेडिट के आधार पे वो किसी कोर्स में एडमिशन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। लैटरल मोबाइलिटी हमारी संस्था में है कि नहीं है, इसको हमें सुनिश्चित करना है। विगत 5 वर्षों में क्रेडिट ट्रांसफर, जिसको हम इसको क्रेडिट ट्रांसफर के रूप में समझ सकते हैं, कि अगर किसी विद्यार्थी ने कोई पाठ्यक्रम पूरा किया और वो आपकी यूनिवर्सिटी में आके, आपकी संस्था में आके आगे उसी से रिलेटेड पाठ्यक्रम को चालू करना चाहता है, तो उसी क्रेडिट के आधार पे उसको एडमिशन मिलने की कितनी संभावनाएं हैं, कितने प्रोस्पेक्ट्स आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम में हैं, ये हमें जस्टिफाई करना होगा। कि लेटरल एंट्री, वर्टिकल एंट्री, दोनों हमें देखना होगा कि अगर कोई विद्यार्थी एक कोर्स से ऊपर की तरफ जाना चाहता है तो क्या इस तरह की वर्टिकल मोबाइलिटी हम विद्यार्थी को उपलब्ध करा रहे हैं। अगर हमारे पास है तो हमें क्लियर कट तरीके से उसको NAAC को उपलब्ध कराना चाहिए, उसकी हमें पूर्व तैयारी कर लेना चाहिए। हमें इस बात पे विशेष फोकस करना है कि जो भी डाटा हम उपलब्ध कराएं दैट शुड बी इन प्रेजेंटेबल फॉर्म। कई बार हम डाटा उपलब्ध कराते हैं और जो डीबीबी प्रोसेस से जो लोग गुजरते हैं या जो डीबीबी करते हैं, तो थर्ड पार्टी हमारा वैलिडेशन होता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमने क्या डाटा अपलोड किया है और डाटा का अर्थ क्या है। कई बार क्वेरीज में इस तरह के सवाल भी आते हैं कि जो आपने डाटा उपलब्ध कराया है वो क्लियर नहीं। तो ये सुनिश्चित करना है कि हम जब डाटा को अपलोड करें तो उसको प्रेजेंटेबल वे में रखें और स्पष्ट तौर पे दिखे कि हम क्या कहना चाहते हैं, हमारा डाटा क्या बताना चाहता है, ये हमारे दिमाग में, हमारे डाटा के अंतर्गत होना चाहिए। एवरेज परसेंटेज ऑफ लर्नर्स एडमिटेड इन द इंस्टीट्यूशन थ्रू लैटरल एंट्री, जिसने पहले से किसी पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है, क्रेडिट हासिल कर लिया है, उसको आपकी संस्था में प्रवेश दिया गया है, ऐसे कितने लर्नर्स हैं उनका डाटा हमारे पास होना चाहिए। Number of learners admitted in the institution through lateral entry based on credit transfer year wise over the last 5 years, ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनका डाटा हमारे पास होना चाहिए। और पहले से अगर हमारा प्रयास रहता है तो हम इस तरह के डाटा को कलेक्ट कर पाते हैं। एब्रप्टली अगर हमें इस डाटा कलेक्ट करना होता है तो हमारा प्रोसेस जो है, हमारा जो मार्ग है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर नेम ऑफ द प्रोग्राम, कौन से प्रोग्राम में विद्यार्थी आया। नंबर ऑफ द लर्नर्स एडमिटेड थ्रू लैटरल एंट्री बेस्ड ऑन क्रेडिट ट्रांसफर ईयर वाइज ओवर द लास्ट 5 years, क्रेडिट ट्रांसफर के आधार पे कितने विद्यार्थियों को आपने विगत 5 वर्षों में प्रवेश दिया है, उनका डाटा आपके पास होना चाहिए।